ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے بس اسٹاپ پر کھڑی تھی، لیکن ابھی تک بس کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ چمک رہا تھا اور اس کے گال سورج کی تمازت کی بدولت لال ہو گئے تھے۔ سفید یونیفارم میں اس کا خوبصورت چاند جیسا چہرہ مزید چمک رہا تھا۔ وہ اس وقت بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر پڑے ہوئے بل اس کے غصے کا پتہ دے رہے تھے۔ اس سے تو اچھا تھا کہ سونیا کے ڈرائیور کے ساتھ ہی چلی جاتی، اس نے دل ہی دل میں سوچا، مگر اگلے ہی لمحے جب اسے اپنے ابا جان کا خیال آیا تو اس نے ایک گہری سانس لی۔ اس کے ابا بہت سخت انسان تھے، بیٹیوں کے معاملے میں وہ حد سے زیادہ سختی کرتے تھے جتنے وہ اپنے اصولوں کے پابند تھے۔ کومل اتنی ہی اپنی منمانی کرنے والی تھی۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ اپنے باپ کے ہر اصول سے بغاوت کرتی تھی تو اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہوگا۔ اس کا باپ مسجد کا امام بھی تھا اور اپنے بچوں کو بھی ہدایت کرتا تھا کہ وہ دنیا کی تعلیم حاصل کریں یا نہ کریں، لیکن دین کی تعلیم ضرور لیں۔ اسلم صاحب کے 5 بچے تھے، 4 بیٹیاں تھیں اور 1 بیٹا تھا۔ سب سے بڑا بیٹا تھا جو کہ اپنے گھر والوں سے بغاوت کر کے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ملک سے باہر چلا گیا تھا۔ اسلم صاحب نہیں جانتے تھے کہ داور کہاں سے اتنے پیسے جمع کرنے میں کامیاب ہوا کہ خود ہی اپنے بل بوتے پر ملک سے باہر چلا گیا۔ جب انہوں نے داور سے اس بارے میں پوچھنے کی کوشش کی تو اس نے مسکراتے ہوئے اپنے باپ کو صاف الفاظ میں کہا تھا کہ میں آپ کی طرح نہیں ہوں جو حلال اور حرام کی تمیز کے چکر میں اپنی خواہشات کو ہی نظر انداز کر دوں۔ اگر اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے مجھے کسی بھی حد سے گزرنا پڑا تو میں گزرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ میں نے آپ کی طرح سسک سسک کر زندگی نہیں گزارنی، اور نہ ہی میں نے اپنے بچوں کو چیزوں کے لیے ترسانا ہے۔ میں اس قابل بنوں گا کہ اپنے بچوں کی تمام خواہشات کو پورا کر سکوں اور انہیں مہینے کی پہلی تاریخ کا انتظار نہ کرنا پڑے۔ داور نے اس وقت صاف الفاظ میں اپنے ابا کی غربت کا مذاق بنایا تھا۔ اسلم صاحب جنہوں نے ساری زندگی صرف اور صرف حلال کمایا اور اپنے بچوں کو کھلایا تھا، اس چکر میں تاکہ وہ سب لوگ جہنم کی آگ سے بچے رہیں، اور اب جا کر جب ان کی اولاد جوان ہوئی تھی تو سب سے پہلے ان کی اولاد نے ان کی حلال کمائی پر تھوکا تھا۔ اور یوں اپنے والدین سے بغاوت کر کے داور لندن پہنچ گیا۔ وہاں جانے کے بعد اس نے سب لوگوں سے مکمل طور پر رابطہ ختم کر دیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ان لوگوں سے کوئی تعلق ہی نہ رکھتا چاہتا ہو۔ نوشین بیگم جو کہ اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتی تھیں اور جن کی سانسیں اپنے بیٹے کے دم سے ہی چل رہی تھیں، اس کی جدائی نے انہیں بہت زیادہ بیمار کر دیا تھا۔ وہ بستر سے لگ کر رہ گئی تھیں۔ کافی عرصے تک ان کی حالت اسی طرح سے بگڑتی رہی۔ پھر ایک دن نہ جانے کیسے داور کو اپنی بوڑھی ماں پر ترس آ گیا۔ اس نے جس دن اپنی ماں کو کال کی تھی اس دن وہ تھوڑی سی بہتر ہوئی تھی، کیونکہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ ان کا بیٹا خیریت سے ہے۔ کومل کا شمار ایسی بیٹیوں میں ہوتا تھا جو کہ اپنے باپ کے ہر حکم کے خلاف جاتی تھیں۔ اسے اپنے گھر کے اصول اپنے لیے قید لگتے تھے، اور یہ بڑی سی چادر اور عبایا اسے کسی عذاب سے کم نہیں لگتا تھا۔ اور اس کی بڑی تینوں بہنیں نقاب کرتی تھیں، صرف وہی تھی جو کہ چہرے کو یوں ہی کھلا چھوڑ دیتی تھی۔ جب وہ گھر سے باہر نکلتی تھی تو اس نے اپنے سر پر چادر اوڑھی ہوتی تھی، لیکن جب وہ کالج کے قریب پہنچتی تھی تب وہ چادر اپنے بیگ میں ڈال لیتی اور دوپٹہ گلے میں ڈال کر اندر داخل ہو جاتی۔ اس نے آج تک کسی کو بھی اپنے بیک گراؤنڈ کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں سے آتی ہے، اور کسی کو جاننے میں دلچسپی بھی نہیں تھی، کیونکہ اس کا یہ حسن سب لوگوں کو یہی احساس دلاتا تھا کہ وہ ایک بہت ہی امیر کبیر انسان کی بیٹی ہے۔ اس کی ماں اس کی ان حرکتوں کی وجہ سے بہت خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کی بیٹی بے حد خوبصورت ہے، اسی لیے وہ اسے چھپا کر رکھتی تھی، کیونکہ ان دنوں کراچی میں اغوا کاروں نے ہر طرف تباہی مچائی ہوئی تھی۔ لڑکیاں تیزی سے اغوا ہو رہی تھیں۔ نوشین بیگم کو ڈر تھا کہیں ایسا نہ ہو ان کی بیٹی
अपनी नादानी की वजह से किसी बड़ी मुश्किल में फंस जाए, और वो उसे हिदायत करती थी कि सीधी कॉलेज जाओ और कॉलेज से सीधा घर वापस आओ। वो जब भी उसे ये बात कहती, कोमल जिद की वजह से आस पास निकल जाती थी। वो नहीं जानती थी कि अपनी जिद पूरी करने के चक्कर में वो अपने साथ कितनी बड़ी ज्यादती करने जा रही है। जहाँ तक उसके कॉलेज में दाखिला लेने की बात हुई तो उसके पीछे भी एक लंबी कहानी थी। एक दिन वो दावर का नंबर हासिल करने में कामयाब हो गई, क्योंकि उसे पता था कि उसके भाई का मोहल्ले की एक लड़की के साथ चक्कर चल रहा था, और वो जानती थी कि कुछ भी हो जाए वो उस लड़की से राब्ते में ही होगा। उसने शबनम के पास जाकर साफ अल्फाज में उसे ये बात बता दी कि मैं तुम्हारे और भाई के चक्कर के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। अगर तुम चाहती हो कि दावर तुमसे शादी करे और तुम्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए, तो इस सिलसिले में तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। मुझे अभी और इसी वक्त भाई का नंबर चाहिए। कोमल ने उसे सब्ज बाग दिखाए और उसे भाई का नंबर लेने में कामयाब हो गई, जबकि ये बात भी वो बहुत अच्छे तरीके से जानती थी। चाहे कुछ भी हो जाए, दावर कभी भी उस लड़की से शादी नहीं करेगा, क्योंकि उस लड़की का किसी एक इंसान के साथ नहीं बल्कि मोहल्ले के सब लोगों के साथ ही चक्कर था, और सब लोग ही ये बात जानते थे, मगर वो टाइम पास कर रहे थे। उस दिन अपने भाई को रोते हुए उसने कॉल मिलाई और उसे कहा कि मैंने कॉलेज में दाखिला लेना है, लेकिन अब्बा कह रहे हैं कि उनके पास पैसे नहीं हैं और वो अपनी नाम नेहाद इज़्ज़त को भी रास्ते में ला रहे हैं। उसके अलावा उसने बहुत सारी बातें अपने पास से मिलाकर अपने भाई को बताई। दावर की कोमल के साथ बहुत बनती थी, क्योंकि दोनों ही एक तरह के ख्यालात के मालिक थे। उसने अपनी बहन को तसल्ली दी और कहा कि तुम्हें फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। जहाँ तक तुम्हारी पढ़ाई के अखराजात हैं तो वो मैं उठाने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें हर महीने एक मोटी रकम भेज दिया करूँगा, जिसे तुम्हारा अच्छा खासा गुजारा हो जाएगा। और जहाँ तक अब्बा की हलाल कमाई का सवाल है तो उनकी हलाल कमाई को घर के अखराजात तक ही महदूद रहने दो। तुम्हें उनसे एक फूटी कौड़ी लेने की ज़रूरत नहीं। कोमल रात के वक्त अपनी माँ से इस बारे में बात कर रही थी कि उसके अब्बा ने उन दोनों की बातें सुन ली और दोबारा से वावेला मचाते हुए कहने लगे कि इस घर में उसका 1 रुपया भी नहीं आएगा। कोमल ने भी उन्हें साफ साफ कह दिया था कि आपको अगर उसके पैसे नहीं चाहिए तो मत लें, लेकिन मैं उनके पैसे चाहती हूँ और उनके ही दिए हुए पैसों से मैं अपने कॉलेज के अखराजात उठाऊंगी। उसके साथ साथ उसने अपने बाप को ये भी धमकी दी थी कि अगर उन्होंने उसकी ये ख्वाहिश पूरी ना की तो वो ये घर छोड़कर चली जाएगी और किसी का भी लिहाज नहीं करेगी। असलम साहब अपनी जवान बेटी की नज़रों में बगावत देख रहे थे और वो काफ़ी खौफजदा भी हो गए थे। ना चाहते हुए भी उन्होंने उसकी बात मानने का फ़ैसला कर लिया और उसका दाखिला कॉलेज में करवा दिया। हर महीने उसका भाई उसे इतने पैसे भेज देता था कि जिससे ना सिर्फ वो अय्याशी करती थी बल्कि उसके साथ साथ अपने लिए मुख्तलिफ खूबसूरत जोड़े भी ख़रीदती थी। उसके पास हर जोड़े के साथ मैचिंग सैंडल्स भी होते थे और उसके साथ कीमती ज्वेलरी भी। यही सारी चीज़ें थी जो उसे अमीर जाहिर करती थी। उसकी दोस्ती भी कॉलेज की अमीर लड़कियों से हुई थी। वो हर रोज़ अपनी किसी न किसी दोस्त के साथ गाड़ी में बैठकर अपने इलाके की तरफ निकल जाती थी और फिर थोड़े ही फासले पर गाड़ी रुकवा देती थी और वहाँ से पैदल जाती थी। सोनिया काफ़ी दिनों से ज़िद कर रही थी कि वो कोमल के घर जाना चाहती है। कोमल जानती थी कि अगर वो उसे अपने घर लेकर चली गई तो उसका राज खुल जाएगा, और कोई शक नहीं था कि अगले ही दिन सोनिया ये खबर पूरे कॉलेज में फैला देती। वो किसी भी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहती थी। आज उसकी दूसरी दोस्तें भी नहीं आई थी कि जिनके साथ वो वापस जाती। इसी वजह से उसे बस स्टॉप पर ही जाना पड़ा था। वो मुसलसल 1 घंटा और 15 मिनट से इंतज़ार कर रही थी कि अचानक ही एक बहुत बड़ी खूबसूरत गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। चमकती हुई गाड़ी को देखकर वो खुश हो गई। उसे गाड़ियों का बचपन से ही बहुत शौक था। गाड़ी का शीशा थोड़ा सा नीचे हुआ, उसे एक औरत दिखाई दी जो इस वक्त जेवर से लदी हुई थी। हेलो प्यारी लड़की, तुम यहाँ पर अकेली क्यों खड़ी हो?
क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? उस औरत ने इंतहाई प्यार से उससे सवाल किया। इससे पहले कि कोमल कोई जवाब देती, उसके जहन में अपनी माँ की कही हुई बात आई, जिन्होंने इसे सख्ती से मना किया था कि किसी भी अनजान गाड़ी में बैठने की ज़रूरत नहीं और ना ही किसी अनजान शख्स या औरत के साथ जाने की ज़रूरत है। एक लम्हे के लिए तो उसके दिल में आया कि वो उस औरत को सख्ती से जवाब दे, लेकिन फिर दूसरे ही लम्हे उसने गाड़ी को देखा तो अपने फैसले पर बरकरार नहीं रह सकी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहाँ पर बस का इंतज़ार कर रही हूँ, न जाने वो कहाँ पर रह गई है। तुम मुझे बताओ कि तुमने कहाँ पर जाना है? नीलम बाई ने उसे मुस्कुराते पूछा। इसने जब अपना एड्रेस बताया तो नीलम बाई मुस्कुराते हुए कहने लगी, अरे मैं भी वहीं पर जा रही हूँ, मुझे अपने कुछ रिश्तेदारों से मिलना है। अगर तुम बुरा ना मनाओ तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जा सकती हूँ। वो पुरजोश हो गई और तेज़ी से गाड़ी में जाकर बैठ गई। गाड़ी बहुत ही तेज़ रफ्तारी से चल रही थी। नीलम बाई उसके पहलू में बैठे उससे छोटे छोटे सवाल कर रही थी। वो भी बेवकूफ़ों की तरह सवालात का सही अंदाज में जवाब दे रही थी। थोड़ी ही देर के बाद नीलम को अंदाज़ा हो गया था कि वो एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती है और अगर वो इसे किडनैप कर ले तो इस लड़की के ख़ानदान में दूर दूर तक कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो इसे बाजियाब करवा सके। अचानक ही कोमल की नज़र शीशे के बाहर गुजरते हुए रास्ते पर पड़ी। उसे अंदाज़ा हुआ कि ये रास्ता उसके घर का नहीं है, बल्कि ये तो कहीं और ही जा रहा है। उसने नीलम से पूछा कि हम कहाँ पर जा रहे हैं? ये रास्ता तो मेरे इलाके की तरफ नहीं जाता। नीलम ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें किसी ऐसी जगह पर लेकर जा रही हूँ जहाँ पर जाकर तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा और तुम इस कदर माला माल हो जाओगी कि तुम्हें यूं बस का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नीलम की बात सुनकर उसे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ। उसने एक नज़र ड्राइवर पर डाली जो कि गंदी नज़रों से इसकी तरफ ही देख रहा था। इससे पहले कि वो चीखती चिल्लाती या फिर गाड़ी से बाहर कूदती, नीलम ने उसकी नाक पर बेहोशगी का रुमाल रख दिया। थोड़ी ही देर के बाद वो होशो हवास से बेगाना हो गई। नीलम ने एक गुस्से भरी नज़र उस पर डाली और नफ़रत से कहने लगी कि तुम जैसी नीच लड़कियां इसी काबिल होती हैं। वो इसी तरह की लालची लड़कियों को बहुत अच्छे तरीके से जानती थी और यही उसके लिए सबसे आसान शिकार होती थी। वो हैरान थी कि कैसे लड़कियां एक गाड़ी के चक्कर में किसी अनजान शख्स पर भरोसा कर सकती हैं और कैसे वो किसी के साथ भी जाने के लिए तैयार हो सकती हैं। नीलम उसे अपने कोठे पर लेकर आ गई। आते साथ ही उसने सबसे ख़ास मुलाजमा को मुखातिब किया और उससे कहने लगी, इसको कमरे में लेकर जाओ और इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखो, इसे किसी भी चीज़ की कमी ना होने देना। मुलाजमा ने नीलम से पूछा कि ये यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से आई है। नीलम ने गुस्से से एक नज़र मुलाजमा की तरफ देखा और उससे कहने लगी, क्या इसका यूनिफॉर्म देखकर तुम्हें लगता है कि ये अपनी मर्ज़ी से आई है? अरे ये एक बेवकूफ़ लड़की थी जो कि बस का इंतज़ार कर रही थी। मेरी गाड़ी को देखकर इसकी आंखें चमकने लगीं। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मैं बहुत जल्द इसे अपने काबू में कर लूँगी, लिहाजा मैंने भी अपनी चाल चली और देखो अब ये मेरे पास मौजूद है। तुम सोच भी नहीं सकती कि यह हमें कितनी ज़्यादा दौलत देने वाली है। ख़ास मुलाजमा ने उसको सहारा दिया और उसे अपने कमरे में लेकर चली गई। थोड़ी ही देर के बाद जब उसे होश आया तो उसने अपने आप को एक अनजान जगह पर पाया। कोमल का सर उस वक्त बहुत बुरी तरह से चकरा रहा था। जब वो कुछ सोचने समझने की काबिल हुई तो थोड़ी देर पहले वाला मंजर उसकी नज़रों के सामने घूमने लगा और वो ऊंची ऊंची आवाज़ में चिल्लाने लगी। ख़ास मुलाजमा जिसका नाम शेरी था वो जल्दी से कमरे के अंदर दाखिल हुई। आते साथ ही उसने कोमल के चेहरे पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा और उसके मुंह को दबोचते हुए कहा, अपनी गंदी आवाज़ से चिल्लाना बंद करो। तुम्हें नहीं पता कि ये आवाज़ मेरे सर पर हथौड़े की तरह बज रही है। शेरी को इसी बात की इजाज़त थी। दरअसल इस कोठे में जितनी भी लड़कियां आती थीं उन लड़कियों को शेरी के हवाले कर दिया जाता था। ये उसका काम था कि कैसे उन लड़कियों को गलत काम पर लगाना है
और कैसे उन्हें राज़ी करना है। थप्पड़ खाने के बाद इसका सर बहुत बुरी तरह से चकराने लगा। इसने रोते हुए शहरी के सामने हाथ जोड़े और उसे कहा कि खुदा के लिए मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे अपने घर वापस जाना है। ये तुम्हें यहाँ पर आने से पहले सोचना चाहिए था लड़की। अब जबकि तुमने इस कोठे के अंदर कदम रख लिया है, अब यहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं। अब यहाँ से सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी लाश ही जाएगी। मरे बगैर तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती। जब उसने कोठे का नाम सुना तो उसे लगा कि उसके कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई है। उसे शदीद जिल्लत का एहसास हो रहा था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जैसा तुम समझ रहे हो। मैं बहुत ही इज्जतदार लड़की हूँ। शेरी ऊंची ऊंची आवाज़ में हंसने लगी और कहने लगी कि इज्जतदार लड़कियाँ ऐसी नहीं होती। इज्जतदार लड़कियाँ खुद को छुपा कर रखती हैं और वो अनजान लोगों की गाड़ियों में नहीं बैठती। चलो अब अपनी बक बक बंद करो और मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हें यहाँ पर जिस मकसद के लिए लाया गया है उसके बारे में तुम्हें बहुत अच्छी तरह से बता दिया जाएगा। आज के बाद तुम्हारा काम सिर्फ और सिर्फ अपने हुस्न की बदौलत मर्दों को अपनी तरफ माइल करना है। जितने ज़्यादा मर्दों को तुम अपनी तरफ माइल करोगी उतनी ही ज़्यादा तुम मशहूर हो जाओगी और उतनी ही ज़्यादा दौलत तुम कमाओगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं ऐसा जिल्लत भरा काम नहीं करूँगी, उसने रोते हुए कहा। शेरी मुस्कुराने लगी और उससे कहने लगी कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो फिर सुन लो, तुम्हें यहाँ से चाइना भेज दिया जाएगा। और तुम बहुत अच्छे तरीके से जानती हो कि वहाँ पर लड़कियों के साथ क्या होता है। ना सिर्फ वहाँ पर तुम्हारे साथ बुरा सलूक किया जाएगा बल्कि उसके साथ साथ उसकी वीडियोस भी पूरी दुनिया में चलाई जाएंगी। क्या ये तुम ये चाहती हो कि तुम्हारे हुस्न से पूरी दुनिया आशना हो जाए? अब तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या फिर खामोशी से अपनी इज्जत का सौदा कर लो या फिर पूरी दुनिया को बताकर अपनी इज्जत का सौदा करो। ये कहकर वो तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गई, जबकि कोमल ऊंची ऊंची आवाज़ में रोने लगी। आज उसे अपनी माँ की बातों की समझ आ रही थी और आज उसे अपने बाप की फ़िक्र याद आ रही थी कि वो दोनों जो भी कहते थे ठीक ही कहते थे। ये दुनिया वाकई बहुत जालिम है। ये दुनिया मासूम इंसानों के लिए नहीं बनाई गई। वो ख़ुद को बहुत चालाक समझती थी, जिसकी वजह से अक्सर ही उसकी माँ उसे टोकती थी और कहती थी कि तुम जितनी मर्जी चालाक क्यों ना बन जाओ, लेकिन जो तुम्हारे अंदर मासूमियत छुपी है उसकी वजह से तुम किसी न किसी मुसीबत में फंस जाओगी। और आज ऐसा ही तो हुआ था। वो ना सिर्फ एक मुसीबत में फंस गई थी बल्कि उसके साथ साथ उसने अपने घर वालों की इज्जत को भी दो कौड़ी का कर दिया था। शाम के 7 बज रहे थे, लेकिन अभी तक कोमल का कोई नामो निशान नहीं था। असलम साहब बेचैनी से घर में चक्कर काट रहे थे और उसके साथ साथ वो अपनी बीवी पर गुस्सा कर रहे थे। तुम्हें मैंने समझाया भी था कि अगर किसी दिन वो ज़रा सी भी लेट हो जाए तो मुझे इत्तला दे दिया करो, लेकिन तुम हो कि जिसे मेरी एक बार कही हुई बात समझ नहीं आती। अगर दिन के वक्त ही तुम मुझे बता देती तो मैं ज़रूर कुछ ना कुछ कर लेता। पता नहीं वो कहाँ पर चली गई होगी। कोमल ये सब कुछ अपने घर वालों के साथ पहली बार नहीं कर रही थी, बल्कि उससे पहले भी 2-3 बार ऐसा हो चुका था। वो अक्सर ही रात के 8 बजे घर वापस आती थी। या तो वो अपनी किसी दोस्त के साथ घूमने के लिए चली जाती थी या फिर अपनी पुप्पो के पास उनसे मिलने चली जाती थी। मगर ये सब करने से पहले वो अपने घर वालों को एक बार इत्तला ज़रूर देती थी। आज तो ना उसने अपने घर वालों को इत्तला दी थी और ना ही किसी दोस्त ने ये हामी भरी थी कि वो उसके साथ गई है। हर तरफ ही परेशानी का समा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। और फिर आखिर में असलम साहब पुलिस स्टेशन शिकायत लगाने चले गए। वहाँ जाकर उन्हें पुलिस की जो बातें सुनने को मिली, उनका दिल कर रहा था कि ज़मीन फटे और वो उसके अंदर समा जाए। पुलिस वालों ने उन्हें साफ साफ अल्फाज में कह दिया था कि आपकी बेटी किडनैप नहीं हुई, बल्कि हो सकता है कि वो किसी के साथ खुद ही भाग गई हो। इन्होंने इनकार करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों ने इनकी कोई बात नहीं सुनी और कहने लगे इस उम्र में लड़कियां अक्सर इस तरह की गलतियां कर देती हैं
कुछ दिनों के बाद वो खुद वापस आ जाएगी, तब आप उसे माफ़ कर दीजिएगा और कुछ भी ना कहिएगा। यानी उन्होंने अपनी तरफ से ये बात सच मान ली थी और साथ ही उनकी बेटी के किरदार पर इल्ज़ाम लगा दिया था। मगर असलम साहब अपनी बेटी को बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। वो जितनी भी बागी क्यों ना हो जाए, लेकिन वो इस तरह की गलती कर ही नहीं सकती थी। वो जानते थे कि उसका शुमार ऐसी लड़कियों में होता ही नहीं जो कि लड़कों के चक्करों में फंसे, और ये बात किसी हद तक सच भी थी। उसकी सब दोस्तों के बॉयफ्रेंड्स थे, लेकिन वो बॉयफ्रेंड के नाम से ही चिढ़ती थी। बिलाशुबा उसे पैसे कमाने का और इकट्ठे करने का बहुत शौक था, लेकिन वो चाहती थी कि ये सब वो अपनी मेहनत से करे। वो किसी भी मर्द पर इन्हिसार नहीं करना चाहती थी। दूसरी तरफ उसका भाई भी उसकी तमाम ख्वाहिशात पूरी कर देता था। जहाँ तक अजनबी औरतों पर यकीन करने का सवाल था, तो वो आज तक नहीं जानती थी कि क्यों वो औरत पर ही ट्रस्ट कर लेती है, और उसके इसी यकीन ने इस बार उसे बुरी तरह फंसा दिया था। असलम साहब मायूस होकर घर वापस आ गए। अब उनके पास दुआ करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि पुलिस वालों ने साफ साफ इनकार कर दिया था। थोड़ी ही देर के बाद ये खबर पूरे मोहल्ले में जंगल की आग की तरह फैल गई। सही कहते हैं कि जितने मुंह उतनी ही बातें। हर कोई अपने हिसाब से बात कर रहा था। कोई कह रहा था कि वो अपने आशिक के साथ भाग गई है, तो कोई कह रहा था कि उसे किसी ग्रोह ने किडनैप कर लिया है। लोग इस कदर जालिम थे कि कुछ तो ये भी कह रहे थे कि हो सकता है उसका किसी हादसे में इंतकाल हो गया हो। नौशीन बेगम का रो रो कर बुरा हाल था। वो अपनी सबसे छोटी बेटी से बहुत मोहब्बत करती थी। वो घर जहाँ पर हर वक्त सुकून का समा होता था, अब वहाँ पर सोग का समा था। सारे दिल ही बेचैन थे। सब लोगों को उस नादान लड़की की कमी शिद्दत से महसूस हो रही थी। दूसरी तरफ वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ से कैसे निकले। रात के पहर जब उसने भागने की कोशिश की, तो चौकीदार ने उसे सर के बालों से पकड़कर नीलम के पास लेकर आ गया। नीलम उसको बहुत गुस्से से देख रही थी। उसके साथ ही उसने अपनी ख़ास मुलाजिमा शबनम को बुलाया और उसे डांटते हुए कहा, तुम्हारी मौजूदगी में ये कैसे कमरे से निकल कर भाग सकती है। बेचारी शबनम थोड़ी देर के लिए लेटी थी। वो यही समझ रही थी कि ये लड़की भी सो रही है, मगर वो नहीं जानती थी कि कोमल अपने होशो हवास में है। वो मौका पाते ही कमरे से बाहर निकल गई, मगर उसकी बदकिस्मती कि आगे वो जालिम चौकीदार खड़ा था। नीलम बाई ने उसे गुस्से से कहा कि तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। अचानक ही चौकीदार बोल पड़ा कि अगर आप मुझे इजाज़त दें तो क्या मैं इसे सबक सिखा दूं? मैं आपसे वादा करता हूं कि ये बिल्कुल सीधी हो जाएगी और कभी भी आपके हुक्म के खिलाफ नहीं जाएगी। नीलम बेगम गुस्से से अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई। उन्होंने एक ज़ोरदार थप्पड़ उस चौकीदार के मुंह पर मारा और उस पर चिल्लाते हुए कहने लगी कि तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम इस लड़की के करीब जाओ। ये लड़की बहुत ही कीमती नगीना है, जिसे मैंने एक शख्स के लिए संभाल कर रखा हुआ है। मुझे यकीन है कि वो शख्स ना सिर्फ इसकी कदर करेगा, बल्कि इसके लिए बहुत बड़ी रकम भी अदा करेगा। उसके बाद वो दोबारा से इसकी तरफ मुतवज्जो हुई और उसे कहने लगी, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि तुम्हारी 3 बड़ी बहनें हैं, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम लोगों का आना जाना कहाँ पर है। अगर तुमने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया तो मैं कसम उठाकर कहती हूँ कि ना सिर्फ तुम्हारे बाप को इस दुनिया से गायब करवा दूंगी, बल्कि उसके साथ साथ तुम्हारी बहनों को भी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगी। अब फैसला तुम पर है, या तो तुम खामोशी से हमारी बात मान लो या फिर अपने पूरे ख़ानदान को ही तबाह बर्बाद कर दो। क्योंकि एक बात का तो मुझे अंदाज़ा हो ही गया है कि तुम लोग गरीब हो, और गरीबों की वैसे भी कोई हैसियत नहीं होती। मेरे नज़दीक तो तुम लोगों की कीमत 2 टके से ज़्यादा की नहीं। वो इंतहाई बेदर्दी से इसके जज्बात के साथ खेल रही थी। कोमल फूट फूट कर रोने लगी और उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहने लगी कि खुदा के लिए मेरे घर वालों को कुछ भी ना कहना, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ।
एक बात का तो उसे अंदाज़ा हो ही चुका था कि अब ये वावेला करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि होगा वही जो ये औरत चाहेगी। उसने अपने आप को अपनी किस्मत के सहारे छोड़ दिया था। जब वो अपने कमरे में वापस गई तो उसके दिल में नमाज पढ़ने की ख्वाहिश जागी। आज ना जाने कितने अरसे के बाद वो अपने रब के हुजूर पेश हो रही थी। वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा भी थी और बहुत ज़्यादा टूटी हुई भी थी। नमाज पढ़ने के बाद उसने अपने रब की बारगाह में हाथ उठाया और फूट फूट कर रोने लगी। वो अपने रब से फरियाद करते हुए कहने लगी कि ऐ मेरे रब, मैंने हमेशा ही आपके हुक्म की नाफरमानी की है, हमेशा ही वो काम किया है जिससे ना सिर्फ आप नाराज़ होते थे बल्कि उसके साथ साथ मेरे वालिदैन भी मुझसे नाराज़ होते थे। आज मुझे शिद्दत से अपनी गलतियों और नादानियों का एहसास हो रहा है। ऐ मेरे रब, सिर्फ और सिर्फ मुझे एक आखिरी मौका दे दे। आपकी ये नादान बंदी आपसे वादा करती है कि दोबारा कभी भी आपके हुक्म के ख़िलाफ़ नहीं जाएगी। मैं अपनी सारी ज़िंदगी आपके हुक्म की ताबे रहूँगी, आपके अहकामात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारूँगी। सिर्फ और सिर्फ मुझे एक बार मौका दे दें, एक बार मुझे इस दलदल से बाहर निकाल दें। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी और सजदे में गिर गई। शबनम, जो कि करीब ही बैठी उसकी दुआ सुन रही थी, उसका दिल तेज़ी से धड़का। उसे अपना माजी याद आ गया था। जब वो यहाँ पर आई थी तो उसकी कहानी भी बिल्कुल कोमल जैसी थी। उसे भी कॉलेज के बाहर से उठाया गया था। वो भी इसी तरह अपने रब के हुजूर गिड़गिड़ाई थी, रोई थी, और इसे वहाँ से निकलने का मौका भी मिला था, लेकिन इसने वो मौका गंवा दिया था। वो दिल ही दिल में दुआ करने लगी कि इस लड़की को भी यहाँ से निकलने का मौका मिल जाए, लेकिन वो इस मौके को ना गंवाए। इस वाक़े को तकरीबन 2 महीने गुजर चुके थे, लेकिन सुफियान अभी तक नहीं भूला था। उस लड़की का चेहरा उसकी नज़रों के सामने से ओझल ही नहीं होता था। हर वक्त ही गुस्से से उसका खून खौलता रहता था। इसने उस अनजान लड़की को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश कर ली थी, लेकिन वो इसे कहीं भी ना मिली थी। वो अपने कमरे में लेटा आराम कर रहा था कि अचानक ही उसका दोस्त अरसलान उसके कमरे के अंदर दाखिल हुआ और उसके सर पर खड़ा होकर चिल्लाते हुए कहने लगा, यार क्या हो गया है? आखिर कब तक तुम उस लड़की की वजह से अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते रहोगे? उस वाक़ये को तो अब 2 महीने गुजर गए हैं। चलो अब जल्दी से उसे भूल जाओ। मैं तुम्हें एक और बहुत ही अच्छी खबर सुनाता हूँ। नीलम बाई की मुझे कॉल आई थी। उन्होंने बताया है कि एक बहुत ही कीमती नगीना उनके पास आया है और वो तुम्हें याद कर रही हैं। उन्होंने तुम्हें कॉल करने की कोशिश की थी, लेकिन तुम्हारा नंबर बंद जा रहा था। मैंने उन्हें बता दिया कि तुम इन दिनों कुछ ज़्यादा डिस्टर्ब हो। उसने एक नज़र अरसलान की तरफ देखा और फिर कहने लगा, यार मैं उस जिल्लत को कैसे भुला दूँ? उस लड़की ने पूरी दुनिया के सामने मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारा था और वो उस पर ज़रा भी शर्मिंदा नहीं थी। मेरा बस नहीं चल रहा कि मैं उसे अपने सामने ले आऊं और उसके साथ वो सलूक करूं कि उसकी रूह भी कांप जाए। यार बस तुम उस लड़की को छोड़ दो और नज़रअंदाज करो। अब उस नई आने वाली लड़की के बारे में सोचो। मैं तो बहुत ज़्यादा पुरजोश हूँ। सुफियान ने जब एक नई आने वाली लड़की का नाम सुना तो उसका दिल मचलने लगा। इतने अरसे के बाद उसके दिल में यह ख्वाहिश शिद्दत से जागी थी कि वो किसी औरत के करीब जाए। वो अरसलान को कहने लगा, ठीक है, तुम थोड़ी देर के लिए रुको, मैं जल्दी से तैयार होकर आता हूँ। पुरजोश होकर वो फ्रेश होने के लिए चला गया। तकरीबन आधे घंटे के बाद जब वो बाहर निकला, उसने देखा कि अरसलान कमरे में मौजूद नहीं था। उसके माथे पर बल पड़ गए। अपने आप को उसने ज़हनी तौर पर तैयार कर लिया था, लेकिन अब उसका दोस्त ही वहाँ से गायब हो गया था। उसने गुस्से से अरसलान का नंबर मिलाया। दूसरी तरफ से उसे अपने दोस्त की मुस्कुराती हुई आवाज़ सुनाई दी, मेरे प्यारे दोस्त, मैंने तुमसे झूठ बोला था। हम वहाँ पर अभी नहीं जा रहे, बल्कि नीलम बेगम ने रात का वक्त दिया है। रात तकरीबन 9 बजे मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा।
तब तक तैयार रहना। उसने गुस्से से मोबाइल दीवार पर दे मारा। उसके दोस्त को मोबाइल टूटने की आवाज़ सुनाई दी थी, जिससे वो मज़ीद खिलखिलाकर हंसने लगा। उसे सुफियान को तंग करना शुरू से ही बहुत अच्छा लगता था। अभी भी उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ उसे बिस्तर से उठाना था और उसके मूड को थोड़ा सा बेहतर करना था। वो नहीं जानता था कि उसके मूड को ठीक करने के चक्कर में वो ख़राब कर चुका है। सुफियान को जब गुस्सा आया तो माजी के लम्हे दोबारा से उसकी नज़रों के सामने घूमने लगे। चंद महीने पहले ही उसकी एक कज़न थी जिसके कॉलेज में मीना बाज़ार हुआ था। वो दिन के वक्त सुफियान के पास आई और उसकी मिन्नतें करने लगी कि वो उसे कॉलेज छोड़ाए, क्योंकि ड्राइवर घर पर मौजूद नहीं था। ना चाहते हुए भी वो उसे कॉलेज ले आया। छुट्टी का वक्त हुआ तो उसे लेने के लिए भी गया। बाहर खड़ा उसका इंतज़ार कर रहा था कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की कॉलेज से निकली। वो हुस्न का शुरू से ही शैदाई था। न जाने उसके दिल में क्या आया कि वो उस लड़की के पास चला गया। वो अपने होलिये से मॉडर्न लग रही थी। उसे लगा था कि ये लड़की उसे बातचीत कर लेगी, मगर उस लड़की ने इसे नखरे दिखाए और इसके करीब से होकर गुजरने ही लगी थी कि इसने लड़की का हाथ पकड़ लिया। सुफियान के लिए सारी चीज़ें बहुत मामूली थी। सामने खड़ी लड़की का पारा गुस्से से हाई हो गया। बेसाख्ता उसका हाथ उठा और सुफियान के चेहरे पर निशान छोड़ गया। उसी वक्त कॉलेज की और भी लड़कियां थीं जो बाहर निकली थीं। सबने ये मंजर अपनी आंखों से देखा था और सबके मुंह से बेसाख्ता चीख निकली थी। सुफियान ने जब ये देखा तो शर्मिंदगी के एहसास से पागल हो गया। वो जल्दी से गाड़ी में बैठा और अपने घर की तरफ बढ़ गया। आज से पहले कभी भी किसी ने उसके चेहरे पर हाथ नहीं उठाया था। यहाँ तक कि उसके माँ बाप ने भी उसे नहीं मारा था। उसे बचपन से ही शहजादा बनाकर रखा गया था। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो उससे ऊंची आवाज़ में बात करे, मगर एक 5 फुट की लड़की ने उसे सारे कॉलेज के सामने 2 कौड़ी का बनाकर रख दिया था। सोनिया ने सुफियान को उस लड़की के बारे में नहीं बताया था, क्योंकि वो जानती थी उसका कज़न दिमाग से पैदल है और कोई भरोसा नहीं कि वो उस लड़की को नुकसान पहुंचा दे। वो अपनी दोस्त से बहुत मोहब्बत करती थी और उसे किसी भी मुसीबत से दो चार होते नहीं देख सकती थी। इसी वजह से उसने ये राज अपने दिल में ही दबा लिया था और अपने कज़न के सामने मुकम्मल तौर पर मुकर गई थी कि वो उस लड़की को नहीं जानती और ना ही उसे पता है कि उसका कज़न किसके बारे में बात कर रहा है। रात तकरीबन 8 बजे वो अपने दोस्त के साथ गाड़ी में जाकर बैठ गया, मगर उसकी नज़रों के सामने अभी भी उस कॉलेज की लड़की का चेहरा घूम रहा था। अरसला ने जब उसे सोचों में गुम पाया तो उसे कहने लगा, मेरे दोस्त, मैं जानता हूँ कि ये सदमा तुम्हारे लिए बहुत बड़ा है, लेकिन जितना जल्दी तुम इस सदमे से बाहर निकल आओ उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। दूसरी तरफ कोमल को इंतहाई चुस्त लिबास पहनाया गया था, क्योंकि आज रात वहाँ पर पार्टी का एहतमाम किया गया था। वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के लोग आ रहे थे, जिनमें बड़े बड़े बिजनेसमैन भी थे और अमीरों के बिगड़े हुए नवाबजादे भी थे। नीलम बाई ने फैसला कर लिया था कि जो शख्स इसकी सबसे ज़्यादा कीमत देगा, ये लड़की उसी शख्स के हवाले करेगी। थोड़ी ही देर के बाद सुफियान भी अरसलान के साथ वहाँ पहुँच गया। हर तरफ लहराते और झिलमिलाते हुए आंचल इन दोनों को मदहोश कर रहे थे। उसे वहाँ पर खड़े हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी जब उसकी नज़र उठी और फिर पलटना ही भूल गई। सब्ज आँखों वाली वो लड़की बहुत ही खौफजदा नज़र आ रही थी। उसके चेहरे के तासुरात बिगड़े हुए थे। वो बार बार अपना लिबास ठीक कर रही थी और ख़ुद को ढांपने की कोशिश कर रही थी। इसने जब थोड़ा सा गौर किया तो इसके वजूद को एक झटका लगा। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि वही थी जिसने इसके चेहरे पर थप्पड़ मारा था। इसका खून गुस्से से खौलने लगा और फिर उसके साथ ही उसके चेहरे पर एक पुरस्रार मुस्कुराहट फैल गई। इसने दिल ही दिल में फैसला कर लिया था कि अब इस लड़की से बदला लेने का वक्त आ गया है। वो खामोशी से नीलम बाई के पास गया और उसे कहने लगा, मुझे ये लड़की चाहिए। वो इसकी बात सुनकर हैरान हो गई
और इसे कहने लगी, अभी तो पार्टी शुरू ही नहीं हुई। तुम्हें पता है कि हमारी पार्टी का भी एक उसूल है, जब तक शुरू ना हो तब तक हम कोई भी लड़की किसी मर्द के हवाले नहीं कर सकते, और अभी तक तो इसकी कीमत भी नहीं लगी। इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ कहती, सुफियान ने उसके सामने एक तस्वीर लहराई, जिसे देखकर इससे लगा कि इसके कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई है। वो हमेशा ही दूसरों को ब्लैकमेल करती आई थी और दूसरों को डराती आई थी, मगर इस इंसान ने उसे ही ब्लैकमेल कर लिया था। इस तस्वीर में वो एक अजनबी शख्स के साथ बहुत बुरी हालत में मौजूद थी। वो घबरा गई और उससे कहने लगी, ये गलत है, ये झूठ है। सुफियान अजीब से अंदाज में मुस्कुराया और उसे बोला, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि फ़िलहाल तुम किस मर्द के साथ हो। सोचो कि अगर इस मर्द को पता चल जाए कि तुमने और भी मर्दों के साथ ताल्लुकात रखे हुए हैं तो उस पर क्या बीतेगी। सिर्फ यही नहीं, मुझे ये भी पता है कि तुम लड़कियों को किस काम के लिए इस्तेमाल करती हो। मेरे पास उस चीज़ के सबूत भी हैं। सोचो, अगर मैं ये सबूत पुलिस के हवाले कर दूं तो तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी। ना सिर्फ तुम्हारा ये कोठा बंद हो जाएगा, बल्कि उसके साथ साथ तुम किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। तो बेहतर यही है कि वो लड़की मेरे हवाले कर दो। जहाँ तक पैसों का सवाल है तो पैसों को मुकम्मल तौर पर भूल जाओ। मैं उस लड़की को लेकर जाऊँगा और दोबारा कभी भी वापस नहीं आऊँगा। अगर तुमने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो तुम मलिक सुफियान को बहुत अच्छे तरीके से जानती हो। नीलम बेगम बहुत खौफजदा हो गई थी। उसने दोनों हाथों से वो लड़की सुफियान के हवाले कर दी। जब उस बेचारी ने नज़र उठाकर सामने खड़े शख्स को देखा तो उसे लगा सातों आसमान उसके सर पर आकर गिर गए हैं। वो फूट फूट कर रोने लगी। सुफियान ने उसे कोई भी बात नहीं की और उसे खामोशी से अपने फार्म हाउस लेकर चला गया। वो वहाँ उसे एक कमरे में लेकर गया। इससे पहले कि वो उसे कुछ कहता, वो इसके कदमों में गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी। वो इससे माफ़ी मांगते हुए कहने लगी कि खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो। माजी में जो कुछ भी मैंने किया, मैं उस पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मुझे तुम्हारे साथ वो सब नहीं करना चाहिए था, मगर मैं क्या करती। मैं पहले से ही बहुत गुस्से में थी। वो रोती हुई बहुत बेचारी लग रही थी। सुफियान का दिल तेज़ी से धड़का। वो उस लड़की पर रहम नहीं करना चाहता था, लेकिन पता नहीं ऐसी कौन सी ताकत थी जो उसे रहम करने पर मजबूर कर रही थी। ना चाहते हुए भी उसने उस लड़की को कुछ नहीं कहा और साथ ही बैठ गया। जिस जज्बे को वो इतने अरसे से नफ़रत का नाम दे रहा था, आज सुफियान को इस बात का अंदाज़ा हुआ था कि वो जज्बा नफ़रत का नहीं बल्कि मोहब्बत का है। वो इस लड़की को हासिल करना चाहता था और उसे पाना चाहता था। आज जब वो लड़की इसे हासिल हो गई तो वो चाह रहा था कि हलाल तरीका इस्तेमाल किया जाए। और ये सब कुछ इंसान नफ़रत में नहीं करता बल्कि मोहब्बत में ही करता है। उसने कोमल को खामोशी से उसके घर के सामने ड्रॉप कर दिया और वहाँ से निकल गया। वो जब घर के अंदर दाखिल हुई तो उसे बहुत सारी बातें सुनने को मिली, मगर उसे अब इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो पहले अपने बाप के कदमों में गिरी और फिर अपनी माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। फिर उसने अपनी ऊपर बीती हुई दास्तान घर वालों को सुना दी। सब शुक्र अदा कर रहे थे कि उसकी इज्जत बच गई है। अब इसने घर से निकलना मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया था, यहाँ तक कि उसने कॉलेज जाना भी छोड़ दिया था। अब वो सारा वक्त अपने कमरे में ही रहती थी। 5 वक्त की नमाजी हो गई थी। अपने रब की इबादत करने लगी थी। उसके रब ने उसे वहाँ से निकालकर उस पर एक बहुत बड़ा एहसान किया था। वो मुकम्मल तौर पर बदल गई थी। अपने बाप के साथ अब वो बदतमीज़ी नहीं करती थी और ना ही अपनी माँ के किसी हुक्म के ख़िलाफ़ जाती थी। जब थोड़ा सा मज़ीद वक्त गुजरा तो सुफियान एक दिन उसके घर रिश्ता लेकर आ गया। उस वक्त तक उसकी बड़ी तीनों बहनों के रिश्ते हो चुके थे, इसीलिए घर वालों ने अच्छा रिश्ता समझकर दोनों का निकाह तय कर दिया। तकरीबन 1 महीने के बाद उसकी शादी हो गई। वो उरूसी जोड़े में मलबूस
बेड पर बैठी अपने शौहर के आने का इंतज़ार कर रही थी। थोड़ी ही देर के बाद जब वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो उसने सर उठाकर अपने मोहसिन की तरफ देखा, जो इसे ही देखकर मुस्कुरा रहा था। वो इससे कहने लगा, ना ही मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत है और ना ही माजी को दोहराने की ज़रूरत है। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। माजी में मुझसे भी बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं और मैं इस सिलसिले में अपने रब से माफ़ी मांग चुका हूँ। मुझे यकीन है कि मेरे रब ने मुझे माफ़ कर दिया है। इसी वजह से तो इतना प्यारा तोहफ़ा मुझे मिला है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। तुम्हें कोई भी तकलीफ़ महसूस नहीं होने दूँगा। तुम बस मेरा साथ देने का वादा करो। कोमल ने खामोशी से अपना हाथ उसके हाथों में दे दिया और एतराफ़ कर लिया। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।